Madhu, uh, if it's possible, if you can do it in a Hindi, Oh, if it's good. possible, because Yeah, I love your Hindi as it is, and I think it will be in the YouTube. So if people are watching, they can understand it too. sure, sure. People from કારણ the કે south. મેં રામબાબુ સર સાથે હિન્દીમાં જ કર્યું છે, Yes, તો yes. આજે હું જોતી Usually, હતી તો મારાથી હિન્દી જ બધું. yes, yes. I know you are very fluent in Hindi, and unfortunately, we are not that fluent in Hindi. But ના ના. but I think it will be advisable to be in Hindi the session. So મારું આ સેટઅપ બરાબર છે કે હું આડી છું બરાબર? you are perfect. You are perfect. Yeah. So if you can, we can do the session in Hindi. Would be nice. If everyone knows, we have now YouTube channel too. If it's possible, still we are loading quite a many sessions in the YouTube. Our grandson Shailin made the YouTube channel for our Dhyan group, and all the session will be transferred in there. So I think it's more advisable to everybody to subscribe the channel also, the YouTube, and this way we can promote more Dhyan, all the Dhyan sessions in there, and people can refer it back to it. So we'll start the today's session. Today is we are very fortunate to have the session with my sister, my younger lovely sister, Madhuri Gosar, will be the one conducting the today's session. Sachin, if you can put her in the screen, Madhu. Speaker, Madhu, say something. Yeah, but Yeah. yeah, you are not on the screen. Yeah. My lovely sister Madhuri Gosar will be conducting today's session. As it is, she is fantastic meditator for long time astral traveler, long time in past life also, and very, very divine soul who guided me to come in this meditation. And I always appreciate it. She doesn't like me to talk about it, but I'm going to say it, that she's the one, drew the path for me and guide me in this path. And I'm so fortunate to have her here today. Madhuri, the session is all yours. You can start with an Okar mantra. You can start with a Gayatri mantra also. Okay. And then we can go ahead with the session. Okay. Thank you, friends. અને બધાને, or everybody is welcome in the session of Hanuman Prasad Podarji, Bhaiji. અને very great personality, એમના पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए आप सभी को बहुत पवित्र, आपके मन में बहुत पवित्रता आ सकती है, और जो जो आपको फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत बहुत मजा आएगा. सो फ्रेंड्स, पहले हम 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे. इसके बाद में नौकार मंत्र और गायत्री मंत्र का स्मरण करके बाद में आगे जाएंगे. सो फ्रेंड्स, पहले 2 मिनट के लिए सब हैंड क्लेस, आंखें बंद करें, अपने दोनों अंगूठों को मिला के रखे ऐसे. कोई भी एक के ऊपर एक रखे तो भी ऐसा, और ऐसे रखे तो भी ऐसा, क्योंकि सीधा ब्रेन से कनेक्शन होता है दोनों अंगूठों को मिला के. सो हैंड क्रॉस, लेग क्रॉस, आंखें बंद करें. पूरे दिन भर जो भी आपके साथ हुआ है उनको एक बाउंड्री में छोड़कर आगे बढ़ना है अपने पवित्र सोल के लिए. सो फ्रेंड्स, totally be with yourself for 2 minutes.
हम्म, 2 मिनट। 2 मिनट होने को आए हैं फ्रेंड्स। अपने हाथों को खुद को महसूस करें, आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। ओम नमो अरिहंताय। ओम नमो सीताणां। ओम नमो आयर्याणां। ओम नमो वज्रायाणां। नमो लोए सव साहूणां। ईसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले मेरे गुरु श्रीमद् राजचंद्र, मेरे गुरु परम पूज्य श्री जी प्रभु, परम कृपानाथ 24 तीर्थंकर और माविदा क्षेत्र में विराजमान जो भी विद्यमान तीर्थंकर प्रत्यक्ष रूप से दिव्य ध्वनि को प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं सभी परमात्मा तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन है। आप सबके जो भी धर्मगुरु हैं, उन्हीं सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सब में विराजमान
भगवान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन है। आज का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस, गोरखपुर। शायद बहुत से लोगों ने अभी अभी सुना भी होगा, गीता प्रेस को 100 साल पूरे हुए हैं और 100 साल की सेलिब्रेशन में नरेंद्र मोदी खास गए थे, क्योंकि यह एक हनुमान प्रसाद जी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, उनका जन्म 1892 और उनका जो डेथ है वह 1971 में हुआ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ऐसा था कि इनके पिताजी का नाम था भीमराज, माताजी का नाम था रिखीबाई। इनकी माताजी को बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे। इनके ताऊजी, मतलब जो इनके पिताजी के बड़े भाई और पत्नी, उनको भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने इनके पिताजी को, मतलब भीमराज जी को अडॉप्ट किया था। अभी रेखीबाई को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत ही राम कुंवर बाई, उनकी जो ताई जी थी, उनको बहुत ही इम्पेशंस हो रहा था कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे। इसीलिए रतनगढ़ में वो बहुत ही अनुष्ठान करवाती थी और नाथ संप्रदाय के महर दास जी थे, उनके साथ उन्होंने हनुमान जी का अनुष्ठान करवाया था। तब वहां पे एक संत थे, मोतीराम जी महाराज। मोतीराम जी महाराज राम कुंवर बाई को कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रही है, मैं ही आपके घर में आपके पोते की स्वरूप में, ग्रैंड सन के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। और उन्होंने उनको बहुत सी ये बताई, निशानियां बताई कि जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा। घुंघराले बाल होंगे, बहुत ही हट्टा कट्टा होगा और उसकी थाइज में तिल होगा। और थोड़े दिनों में उनकी उन्होंने देह त्याग किया और रिकी बाई को भी अच्छे से दिन आने लगे और पूरे समय में बच्चा पैदा हुआ और जो निशानियां उन्होंने बताई थी वो सभी उसी में थी। इसके बाद में ऐसा होता है, 5 साल का ये होते हैं और उनका नाम हनुमान प्रसाद जी रखा गया, क्योंकि मेहरदास जी ने कहा कि हनुमान जी के अनुष्ठानों से ही, उनकी कृपा से ही ये बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए उनका नाम हनुमान प्रसाद जी। और उनका शरीर का सौष्ठव भी ऐसा ही था कि वो हनुमान जैसे ही लगते थे, बहुत ही भरावदार और सब, और दयालु भी ऐसे ही थे। और फिर 5 साल की उम्र में उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है और राम कुंवर बाई के सिर उनकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। राम कुंवर बाई खुद बहुत धार्मिक, सब चर्याओं वाली थी, धार्मिक हर एक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में उनकी रुचि थी। उनकी संस्कृत भाषा से बहुत प्यार था, इसीलिए बचपन से ही उनको सब साधु संतों के साथ रखा गया था, जिससे हनुमान चालीसा, फिर बहुत से ग्रंथ, उनको दुर्गा सप्तशती हर रोज उनको बुलाए जाते थे और ये बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर लेता था। और उनकी हर एक भाषा को सीखने की ऐसी थी, मास्टरी थी कि एक बार सुनते और उनको वह अपने आप ग्रास्प कर लेते थे। 6 साल की उम्र में वह शिलोंग थे, क्योंकि उनके पिताजी का वहां पे व्यवसाय था, आसाम शिलोंग में। उनके बाजू में उनके एक चाचा जी रहते थे, उनकी वहां पे पूजा थी, तो सब बच्चे और ये जो उनकी बुआ जी सब लोग गए थे उधर प्रसाद लेने के लिए। उसी टाइम पे अर्थक्वेक आता है, तो वो जो चाचा जी थे, उनको वो लोग सब मकान को गोला कहते थे, तो वो गोला उनका पूरा गिर गया था। तो ये लोग सब दौड़ के आते हैं कि हमारे बच्चे सब इधर है, फैमिली है, वो कहाँ है। लेकिन ऐसा हुआ था कि इनकी बुआ जी का लड़का, उसका लड़का, उनकी सबकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पास जो पत्थर आते हैं, तो ये रोड पे आ गए थे, तो पत्थरों ने ऐसा कॉर्डन कर दिया था और उनको पूरा सुरक्षित रखा था। तो ये लोग सब मन्नू बोलते थे, तो मन्नू मन्नू कह के उनको पुकारते हैं। तो बच्चा अंदर से बोलता है कि
अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। और देखा तो पूरी तरह सुरक्षित, एक खरोच तक नहीं आई थी। ये उनकी ईश्वर के प्रति लीला थी, एक पहली वाली। इसके बाद में ऐसा होता है कि उनकी जैसे बड़े होते जाते हैं, 12 साल में उनकी शादी हो जाती है। शादी हुई और उनकी पैरालिसिस हो गया था, क्योंकि तब बाल विवाह का प्रसार था। पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, दूसरी बार शादी करते हैं, लेकिन बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तब दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अभी उनको थोड़ा ऐसा वैराग्य जैसा होने लगा था, लेकिन राम कुंवर बाई के मतलब उनकी ताई जी के आग्रह से तीसरी शादी की। उनका नाम था रामदेई बाई। वो एंड तक उनके साथ ही रही। अब ऐसा हुआ कि ये कलकत्ता आए थे, क्योंकि आसाम शिलोंग से ये लोग कलकत्ता, उनके पिताजी ने और भी बिजनेस का एक्सपेंशन किया था। इनकी जुबान इतनी मीठी थी कि हर एक के साथ में वह घुल मिल जाते थे। बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था, बिजनेस के टेक्टिक, हर एक के साथ बोलना, कैसे बिहेव करना, क्या करना, छोटों बड़ों को कैसे हेल्प करना। और ये सभी बातों से हर एक लोग उनको भाई जी कहते थे। अभी ऐसा हुआ था कि कलकत्ता में या चितरंजन दास ये थे, और सुभाष चंद्र बोस थे। वह सब फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट थे, क्योंकि उनका जन्म 1892 में हुआ था। मोस्टली 19 के शुरुआत में इनके मतलब 1910 1912 ऐसी ये थी जब साल चल रहा था, तब भी फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में कूद पड़े थे। अभी ऐसा था कि ये लोग सब व्यापारी लोग, क्योंकि कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो तो अहिंसा में ऐसे मानने वालों में से नहीं थे, तो वो तो वेपन्स बाहर से मंगवाते थे, वो कंटेनर मंगवाते थे, और ये सब व्यापारी अपने गोदामों में उनको छिपा के रखते थे। कलकत्ता में इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से होती है, गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, लोकमान्य तिलक से होती है। बहुत बड़े बड़े जो तब के गणमान्य नेताएं थे उनके साथ होती है। उनकी बुद्धिमत्ता, कुशाग्र बुद्धि और मैनेजमेंट पावर को देख के हर एक लोग उनसे बात करना चाहते थे, और हर एक के लिए उनके पास बातें भी थी करने के लिए भी। और ऐसा होता था कि हर एक के प्रिय, जुबान से मीठे, और बहुत, इसीलिए एंड तक लोकमान्य तिलक के जब तक देह छूटा उनके साथ थे, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ भी अंत समय तक थे। यहाँ पे इनका जो जो माल था, मतलब जो गया, ये वेपन्स थे, इनके गोडाउन से पकड़े जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स इनको पकड़ लेते हैं, 4 साल की जेल की सजा होती है। इतने बीच में गीता का जो इनके चचेरे भाई थे, जगदयाल गोयनका जी, उनको सब सेठ जी कहते थे। जगदयाल गोयनका जी ने गीता पर बहुत अच्छी टीका लिखी थी, और कहते हैं कि अब तक इतनी अच्छी टीका किसी ने लिखी नहीं। और गीता का प्रचार प्रसार क्यों करते थे? क्योंकि गीता में अर्जुन ने अपने विरोधियों के साथ, अधर्म के साथ युद्ध लड़ने की हाकल की है। इसीलिए ये गीता का प्रचार प्रसार इतना करते थे। गीता पूर्ण उनको बाय हार्ट, कोई भी श्लोक, कोई भी अध्याय कहाँ से भी पूछो। और उनका उनकी स्पीच इतनी मीठी थी कि हर एक जगह वो स्वाध्याय करवाने जाते थे। जगदयाल गोयनका जी के स्वाध्याय करते थे, और इसीलिए उनको यह सब, गीता का इतना प्रचार प्रसार होता है, गीता छपवाते हैं तो 5,000 कॉपीज तो तुरंत ही बिक जाती है। लेकिन गीता के अंदर बहुत सी प्रिंटिंग में मिस्टेक्स होती थी, इसीलिए ये थोड़े खिन्न रहते थे कि जब तक अभी मेरा प्रेस नहीं हो तब तक मैं गीता अभी नहीं छपवाऊंगा मैं। और इसी बीच उनको जेल हो जाती है। तब तक ये स्पिरिचुअलिटी में आने लग गए थे, और जेल में तो और कुछ काम नहीं रहता है, तो वहां पे उन्होंने नारद भक्ति रहस्य की टीका लिखी, उनको पूरा पढ़ा शास्त्र। संस्कृत तो वैसे भी उनकी बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए वह सब। और नारद भक्ति रहस्य में जो भी हिंदू भाई बहन है उनको पता रहता होगा कि गोपी भाव, नारद ने गोपी भाव में रहकर कैसे भक्ति की है कृष्ण की, वह सब सूत्रों के रूप में है। उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो वो 2 साल उनकी अपनी बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसीलिए अंग्रेज लोगों ने उनको 2 साल, और 2 साल शिमला में नजर कैद रखा, और उनकी वाइफ को वहां पे
आने की भी छूट दे गई। और ऐसा होता था कि अभी वहां पे तो रहते थे, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आने लगे थे। अभी 4 साल की जेल के बाद उनके पास उनका बिजनेस और सब ठप हो गया था, इसलिए वापस ये बम्बई आते हैं। बम्बई में शेयर ट्रेडिंग में उनके जो चचेरे भाई थे उनके साथ में ज्वाइन हो जाते हैं। इधर भी गीता प्रेस अभी वहां पे लगा हुआ था, क्योंकि गंगा घनश्याम दास चालन करके एक उनके मित्र थे, वह गोरखपुर के थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको जमीन दिलवा सकता हूँ गोरखपुर में, आप यहाँ पे प्रेस लगाइए। गोयनका जी और ये सब मिलके वहां पे प्रेस लगवाते हैं। ये गोरखपुर और बम्बई आना जाना रहता है। बम्बई में एक बार ऐसा होता है कि वो चौपाटी पे बैठे रहते हैं और रोज उनका नाम जब बहुत रहता है। एक बार एक आदमी वाइट उसके गाउन में खड़ा था इनके पास, और ये नाम जप कर रहे थे। और उनको ऐसा लगा कि कोई खड़ा है, तो देखा, तो फिर उन्होंने ऐसा देखा नहीं देखा कर दिया। फिर बहुत टाइम के बाद उनके सब नाम जब पूरे हो गए तब भी वो खड़ा है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप बैठ जाइए मेरे पास, मुझे कोई हरकत नहीं है। उन्होंने बातें करना चालू किया, तब वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं प्रेत आत्मा हूँ। ये तो सहम गए कि कोई भी बोले प्रेत आत्मा, तो ये डर गए। तो उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, मैं ऐसा वाला प्रेत आत्मा नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा प्रेत हूँ कि मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता सामने से जब तक आप मुझे बुलाओ नहीं। अभी आपने मेरे साथ बात की, इसीलिए मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ। और उन्होंने कहा कि बस मुझे एक रिक्वेस्ट है कि मैं प्रेत योनि में बहुत निचले लेवल पर हूँ, मुझे आगे जाना है। और मुझे मेरी फैमिली ने मेरा पिंड दान नहीं किया है, आप किसी को भी बेच के मेरा ये पिंडदान करवाइए। तो उन्होंने कहा, मैं पारसी हूँ, इसीलिए मेरे घर वालों इसमें मानते नहीं हैं। तो ये कहते हैं भाई जी कि आपको पता है कि आपके घर वालों ने जो भी क्रिया होगी वो की ही होगी। तो ये कहते हैं कि मुझे संतोष नहीं है, अगर आप, उन्होंने पूरा उनका एड्रेस दिया, बहुत कुछ उनको बोला। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं सब इंक्वायरी करके मैं करता हूँ कुछ। दूसरे दिन जो एड्रेस दिए थे, वह एड्रेस पर वो सचमुच के पार्थिव गृहस्थ वहां पे रहती थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो हर रोज गीता का अध्ययन करते थे, उनको बहुत रुचि थी गीता में जी। और ऐसा होते तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उनके पास एक हरिहर ब्राह्मण करके आदमी था, उसको गया में भेजे और वहां पे पिंडदान करवाया। और दूसरे दिन जब पता चला कि उनका पिंडदान हो गया है, तब वह प्रेतात्मा वापस आती उनके थैंक्स कहने के लिए कि अभी मैं ऊपर गया हूँ, अभी मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। उनका मामा जी का घर था सांता क्रूज में। तो वो ट्रेन से वहां पे सांता क्रूज स्टेशन पर उतरे, तो उनको था कि मैं अभी ट्रैक क्रॉस कर लूंगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। उनको पता नहीं कैसे एक पल में एक आदमी, युवान सा आदमी, उनको धक्का देके वहां से करता है। और वो पीछे से देखते हैं तो वो प्लेटफॉर्म पे जाके हंस के उनको बाय करता है और अलोप हो जाता है उनके सामने ही। तो ऐसे ऐसे उनको बहुत एक्सपीरियंसेस तब से आने लगे थे। और फिर ऐसा होता है कि 1926 1927 में उनको हरि की लीला, हरि विष्णु चतुर्भुज दर्शन उनको होता है अपने आप, क्योंकि वह नाम जप में पूरे लीन हो जाते थे। जैसे जैसे नाम जप करते थे और इतने लीन हो जाते थे कि भाव समाधि कहीं भी लग जाती थी। तो रतनगढ़ के पास जब वहां पे थे, तो इतनी भाव समाधि लग गई थी। तब इनको पूछते हैं गोयनका जी कि आप की जो साक्षात्कार हुआ है विष्णु भगवान का, आप उसको क्या मानते हो। तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मैं एकांत में ध्यान करता हूँ तब भी मुझे दिखते हैं, मैं ऐसा कहीं भी दिखता हूँ मुझे कभी भी वो प्रदर्शन देते हैं, साक्षात्कार भी लगता है। तो वो कहते हैं कि तो फिर आप चरण स्पर्श कर नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं कर पाता हूँ। तो आप प्रगाढ़ ध्यान की स्थिति में हैं, और भी ध्यान कीजिए। और जसीडीह करके गांव था, वहां पे जब वो 15-16 आदमी साथ में ध्यान कर रहे थे, अचानक भावावेश में आ जाते हैं। फिर से उनको वो लीला का दर्शन हो जाता है और वो बातें करने लग जाते हैं। गोयनका जी को होता है, हनुमान जी बोलो बोलो, लेकिन ये क्या बोले, ये तो हरि से बात कर रहे हैं। और सब लोगों को पता चला कि अभी भाई जी को प्रभु साक्षात दिखने लगे हैं।
और ऐसा होता है कि ये प्रभु दिखते 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 बहुत भाव समाधि में लीन होते जाते हैं। मुंबई में इनका मन नहीं लगता है, इसीलिए गोरखपुर बार बार जाने को मन करता है इनका। इनके एक मित्र थे, उन्होंने उनको ढाढ़स बंधाई कि आप बेफिक्र होके चले जाइए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था क्या थी? अभी उनके जो व्यापार के जो भी पैसे होंगे, क्योंकि 35-36 की एज में ही उन्होंने व्यापार या सब कुछ बंद कर दिया था। अभी चित्त नहीं लग रहा था कृष्ण कृष्ण में, विष्णु में, जो भी उनको याद आते थे, हरे शंकर भगवान उनके कभी भी बोलो ऐसे आ जाते थे उनको हेल्प करने के लिए। अभी कोई कोई चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह गोरखपुर के लिए हो गए। ऐसा होता है कि गोरखपुर जाते हैं तो यहाँ पे गांधी जी और मदन मोहन मालवीय उनको बुलाते हैं वापस कि आप आइए यहाँ पे, आपकी बम्बई में बहुत जरूरत है। उनका मान रखने के लिए आते हैं। तब कहते हैं कि आपको फ्रीडम का, यहाँ का, बम्बई का सब कारभार आपको संभालना है, आप कैसे उधर पे चले गए? गोयनका जी ने, सेठ जी ने उनको कहते हैं कि अभी आपकी राह बदल गई है, आपको अभी ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी ये आज्ञा नहीं है कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं, अभी मैं बहुत इसी में आगे चला गया हूँ। मदन मोहन मालवीय जी को पता था कि ये कहाँ तक आगे गए हैं, इसीलिए। और वहां पे राम नारायण रुइया, जो रुइया कॉलेज इनके है, रुइया मिल्स, राम नारायण रुइया उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जी आप कुछ ना करो, लेकिन मेरी बच्चों के गार्डियन बनो, मेरे बच्चे अभी भी छोटे हैं, उनको गार्डियनशिप की बहुत जरूरत है। आपके लिए तभी उस टाइम में मैं 1 लाख एनम का पगार, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब दूंगा, लेकिन आप गार्डियन बनो। भाई जी ना कहते हैं, नहीं अभी मेरा राह अलग हो गई है, मैं अभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आगे जाना चाहता हूँ। और जो लीला वो देखती थी वो ऐसी मधुरतम होती थी उनके लिए कि जब वो भाव समाधि से बाहर भी आती थी, उदास भाव में बहुत रहते थे, बोलना उनको अच्छा नहीं लगता था। इसी बीच में दिल्ली में यह मारवाड़ियों का सम्मेलन होता है, तो जमुनालाल बजाज भी के बहुत फेवरेट रहते थे। जमुनालाल बजाज ने प्रमुख पद थे, इसीलिए उनको जाना पड़ा। वहां पे घनश्याम दास बिरला जी भी थे। घनश्याम दास बिरला जी गीता प्रेस की बहुत सराहना करते हैं और कहते हैं कि आपको एक पत्रिका निकालनी चाहिए, घर घर पहुंचे ये धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, तो हर एक युवाओं को भी पता चले कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है। और उन्होंने 1925 में ये हुआ, 1926 से कल्याण पत्रिका होनी चालू हो गई। ऐसा हुआ। और कल्याण में महात्मा गांधी जी के पास गए और महात्मा गांधी जी से भी लिखवाए थे लेख उन्होंने। बहुत से लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा कल्याण में लिखने के लिए आगे रहते थे। सिर्फ उनका वहां पे मैसेज पहुंचना होता है कि आप कुछ भिजवाइए। और कल्याण मैगजीन इतना लोकप्रिय हो गया, 1.5 लाख मेंबर हो गए उनके। उनके पास प्रेस की इतनी ही ताकत थी। और इसके आगे अभी सब लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम मेंबरशिप नहीं लेते। मेंबरशिप कितनी थी? 5 रुपया वार्षिक। और उन्होंने ये उसी से चालू किया। अभी भी आप गीता प्रेस में जो भी बुक्स छपवाते हैं, उन्होंने भागवत की टीका लिखी है, भागवत छपवाया है हिंदी में। और गीता जी तो वैसे भी हिंदी में छपनी थी, इसीलिए गीता प्रेस का नाम रखा गया था। बाकी के बहुत सारे, नारद भक्ति रहस्य की टीका, फिर ये मानस, रामचरित मानस, उनकी टीका, बहुत से ग्रंथ वहां पे हिंदी में अनुवाद करके भाई जी प्रकाशित करवाते थे। भाई जी की मैनेजमेंट पावर ऐसी थी, कोई सोच नहीं सकता था कि यह स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा हुआ। आपसे बातें करते हैं तो आपकी उनके साथ में जो संबंध रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, उसी तरह बातें करते हैं। अंदर क्या चलता है किसी को पता नहीं चलता था। इसीलिए उनके घर वालों को पता नहीं चलता था कि ये सब जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि क्या है। राधा बाबा करके एक संत आए। राधा बाबा की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं इनको शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि राधा बाबा एक ऐसे संत थे कि वह जब दयाल गोयनका जी के पास गए, और वो निर्गुण निराकार में मानते थे, उनके पास जाके उनके साथ बहुत चर्चा होती है। अभी ये लोग सब भक्ति मार्ग के, पुष्टि मार्ग के, और भगवान की लीला, उनकी भजन कीर्तन उसी में मानने वाले, और उसी से वह परम पद को पहुंचने वाले।
इनकी पथ ये थी। और ये इनके साथ डिबेट करने आते हैं, और ये इतने बुद्धिशाली और इतने तर्क से ये करते थे, दलील करते थे। गोयनका जी भी उनके जीत नहीं पाए। तब उनके पास राम सुखदास जी महाराज थे, उनके पास भेजा। राम सुखदास जी महाराज 8 दिन तक उनसे दलील करते रहे, लेकिन वो भी इनको ये नहीं कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए। फिर राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि अभी आप भाई जी के पास गोरखपुर जाएं। गोरखपुर जाते हैं, गीता प्रेस में जाते हैं, वहां पे भाई जी को मिलते हैं। भाई जी को तो पता चल जाता था कि कोई भी आने वाला क्या है। भाई जी अंदर रूम में थे, सबने बताया कि बाहर एक संत आपकी राह देख रहे हैं। भाई जी ने कहा सम्मान से बैठे हैं, मैं आता हूँ। आए, भाई जी बाहर आए, देखा यह संत को, संत के संतत्व को मानकर उन्होंने उनके पैर छुए। जैसे ही उनके पैर छुए, राधा बाबा को कृष्ण नजर आया, और कृष्ण का जो रूप उन्होंने देखा, क्योंकि इसके आगे अंदर जो रूम में कीर्तन चल रहा था, उनको ये हुआ कि ये क्या, इधर कितना शोर शराबा है, ऐसे में कौन आध्यात्मिक व्यक्ति रह सकती है। लेकिन पता नहीं था कि कीर्तन से क्या हो सकता है। और उनको पैर छुए, पैर छुए, और पूरे चेंज हो गए राधा बाबा। राधा बाबा को जो दिखा, इसके बाद में राधा बाबा ने हनुमान जी की ऐसी ऐसी भाव दशा देखी, और ऐसा ऐसा उनके साथ में रहकर अंत तक उनके साथ रहे। क्योंकि कृष्ण, एक बार उनको वृंदावन जाना था, क्योंकि अभी उनको कृष्ण भक्ति अंदर अंदर ध्यान होने लगी, बहुत 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 इनसाइड में एब्जॉर्व होने लगी। तो उनको था कि तब सब ऐसा होता था कि जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो वृंदावन में ही जह तक रहते हैं। अभी मुझे वृंदावन जाना है, एक ही बात, अभी मुझे वृंदावन जाना है। क्योंकि वह रोते थे, विरह में बहुत बिलखते थे, और मूर्छा हो जाते थे। तो भाई जी कहते हैं कि आप कैसे जा सकते हो, बार बार मूर्छा आ जाती है। वह गाड़ी यूज नहीं करते थे, पैसा तो उनके पास था नहीं, तो कैसे जाए, तो मैं पैदल जाऊंगा। एक बार फोर्स करके चले गए। जैसे ही थोड़े दूर गए, कृष्ण सामने आके खड़े रह जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि मैं आपके पास वृंदावन आ रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं वापस चले जाओ, मैं तो भाई जी के अंदर रहता हूँ, भाई जी में विराजमान हूँ, आप मुझे वहीं से पा सकते हो, आपको वृंदावन आने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी एक की एक हद तक भाई जी बहुत आगे गए। अखंड नाम संकीर्तन, मतलब अखंड भजन, 2 2 3 3 दिन तक रहता था उनके पास उधर, वहां पे। और बड़ी बड़ी मंडलियां आती थी, क्योंकि हर एक के साथ बाई जी के रिलेशन थे। बड़े बड़े संत, संत हरिदास जी महाराज, जिनको जो हिंदू है उनको शायद पता होगा, हरिदास जी महाराज मुस्लिम संत थे, लेकिन मुस्लिम में संत होकर भी उनको राम नाम का इतना नाम जप करने लगे, पूरे सनातनी हिंदू हो गए। उनको इतनी परीक्षा ले गई, लेकिन फिर भी यह जिंदा रह के यह नाम जप करने लगे थे। और नाम जप का इतना महत्व उन्होंने समझाया है। भाई जी भी कहते हैं कि मेरी अतुल संपत्ति यही है, हर एक में भगवत स्वरूप देखना, नाम, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, और नाम जप। नाम जप मतलब आपकी जो भी हो, आपकी जो भी, जिसको भी आप खुद का मानते हो, जैसे कि मैं श्रीमत को मानती हूँ, तो मेरी यह गुरु है। मैं शिवेंद्र स्वामी को मानती हूँ, ये मेरी प्रिय पात्र है, मैं उनका नाम जप करती रहूं, ये नाम जप मेरा। आपकी जो जो गुरु है, जो जो आपके प्रिय पात्र, जो आध्यात्मिकता में बहुत उन डीप तक गए हैं, उनकी नाम जप आप करते रहे, तो जो स्थिति में वो पहुंचे हैं, वह स्थिति में वो आपको पहुंचाएंगे। अभी इनको ऐसा था कि भाई जी को शंकर भी आते थे। अभी नारद भक्ति रहस्य का उनको एक बार स्वाध्याय करने को मन हुआ। नारद भक्ति रहस्य जैसे ही उन्होंने आपको टीका लिखी थी, देखा, और उनको दर्शन करने को बहुत भाव हो गए। तो रात को सपने में नारद जी और अंगिरा ऋषि आते हैं, और कहते हैं कि कल दोपहर को 3 बजे हम आएंगे, और हम आपके साथ तत्व चर्चा करेंगे। अभी दूसरे दिन, उनको तो अगाध श्रद्धा थी, भगवत कृपा पर श्रद्धा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पूरे बिछाने बिछाए जाए उनके, और 3 बजने को आए, 2 ऋषि आए, और वह जब पेड़ था, वो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ही उनका आसन करवाए थे, खुद नीचे बैठे,
और वो ऋषि आए। वो तो ऐसे उसी रूप में नहीं थे, लेकिन जैसे आसन पर बैठे, नारद जी और अंगिरा ऋषि खुद उनके खुद के प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो गए और प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। और उस दिन वो कहते हैं कि बहुत गाढ़ चर्चा, बहुत अगम निगम की बहुत चर्चाएं, लेकिन भाई जी कभी भी बताते नहीं थे कि वह चर्चा क्यों थी, क्योंकि हर एक की पात्रता नहीं होती वह सब एब्जॉर्व करने की। अगम निगम की बातें जो गिने चुने लोग होते हैं उसी से बाहर आती रही थी। और ऐसे ही 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसकी टाइम पर बहुत से लोग सब रतनगढ़ आ जाते हैं जो कलकत्ता के व्यापारी है, और उसी टाइम पर वो भी वहां पे थे। तो तब भी संत लोगों कहते हैं कि अभी इतने सब धनी लोग आए हैं तो आप करवाइए, कुछ भी महोत्सव करवाइए। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था। और कहते हैं कि भाई जी के आग्रह से इतने लोग आए, इतने संत लोग आए कि अब तक रतनगढ़ में वह महोत्सव अभी भी लोग याद करते हैं। अभी भाई जी ने जो आध्यात्मिक बातें कही हैं उसी पर मैं आती हूँ। भाई जी कहते हैं कि भागवत में यह भगवान को तीन स्वरूप बताए गए हैं। तीन ना भी कहो, लेकिन भगवान के तीन नाम है। तो क्या है भगवान के तीन नाम? कहते हैं कि ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो हम मानते हैं कि जो शंकराचार्य जी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म और कुछ निर्गुण निराकार भक्ति वाला मार्ग, उसी से परमात्मा को पाने की करते हैं। दूसरे परमात्मा मतलब मेरे अंदर जो परमात्मा स्वरूप है उसी में मैं लीन हो जाऊं। उसी के पहुंचने के लिए मैं जो भी थोड़ा बहुत करूं, लेकिन उसी के ध्यान में अंतर्धान हो जाऊं। तीसरा था भगवान मतलब भक्ति स्वरूप। जो भी मेरे सत्पुरुष है उनके साथ मैं भक्ति स्वरूप की दर्शन करूं, उनके साथ में मधुरतम मधुर ऐसा मधुर रस मेरे में झरने लगे कि मैं उन्हीं में लीन हो जाऊं। उनका श्रृंगार रस कहो, कोई भी कहो, भोग चढ़ाओ उनको, कीर्तन करो, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला कि जिसमें जो प्रभु ने जो पाया है वह मुझे दे। और यह संत पुरुष की ही हमेशा कृपा रहती है कि आप उनकी भक्ति करो तो वह भी अपने पास नहीं रखते, वह आपको अपने आत्म तत्व में और भी डुबाते हैं। और संतत्व की प्राप्ति भी कब होती है? जब आप आत्म तत्व की करीब पहुंचते हो, आप उनके वाइब्रेशन को पहचान पाते हो, तब आपको उनकी लीला, उनकी कृपा महसूस होती है। अब ये कहते हैं कि जब आप अध्यात्म में आते हो तब आपको पास 9 चीजें आपके अंदर होती है, मतलब धीरे धीरे करके आती है आपके अंदर। क्योंकि आप अध्यात्म में आने के लिए आप स्वाध्याय सुनते हो, आप भक्ति करते हो, आप व्रत या कुछ भी वो भी कर सकते हो, मौन रह सकते हो, आप ध्यान करते हो। उसी से आपको ये 9 निधियां मिलती है। 9 निधियां क्या है? वो कहते हैं क्षमा का। क्षमा आपके अंदर ऐसी आ जाती है, मैत्री। हर एक जीवों से मैत्री आती है। कोई कितना भी कहे लेकिन आपको किसी पे गुस्सा नहीं आता। सहनशीलता, आके कोई भी आपको कुछ भी बोल के जाए, सहनशीलता का गुण आप में विकसित कैसे होता है? क्योंकि कोई भी बोल के जाए लेकिन आपके पास वह साधन है कि यह जो आप हर्ट हुए हैं, जो आपको फीलिंग्स जो आपकी है, जो आपको किसी ने आपका दिल को दुभाया है, उसी से आप बाहर आ सकते हो। आप कीर्तन करो, बाहर आ जाओ। थोड़ी देर ध्यान करो, बाहर आ जाओ। स्वाध्याय करो, बाहर आ जाओ। किसी का आप स्वाध्याय सुनो तो भी बाहर, क्योंकि आपके पास यह साधन है, इसीलिए आप बाहर आ सकते हो। और धीरे धीरे करके आप वो चीज को महत्व ही नहीं दे सकते, और सहनशीलता का गुण आप में अपने आप विकसित हो जाता है। फिर कहते हैं कि वाणी, व्यर्थ काम व्यर्थ वाणी कभी नहीं कहनी चाहिए। वाणी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बताया है कि वाणी आपकी कैसी होनी चाहिए। 4 प्रकार की वाणी। उन्होंने कहा कि आपकी वाणी किसी को घबराहट पैदा करे ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी में भय पैदा करे। जो लोग बहुत शाउट करते हैं, बोलना होता है तब भी ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डर जाए, यह बहुत बड़ी हिंसा है। वो कहते हैं उस व्यक्ति के सोल को घबराना, घबराहट पैदा करना, यह भी बहुत बड़ी हिंसा है। इसीलिए वाणी हमेशा
प्रिय होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए। कहते हैं कि किसी की चुगली ना करो, गाली ना दो, किसी को श्राप ना दो और किसी को झूठा आश्वासन ना दो। इसमें तो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों हितकारी बोलनी चाहिए। मतलब किसी को आपको बुरी खबर सुनानी है तो आपको उसका थोड़ा बेस बांध कर बातें करनी चाहिए उनसे, कि वह खबर ऐसे सुना हो कि उसे कम दुख लगे। ऐसे व्यर्थ में चाड़ी चुगली करके, क्योंकि निंदक निंदा करने से अपने अंदर ऐसी एक इम्प्रेशन हो जाती है। और वो कहती है कि उनके पास एक रघु नाम का आदमी था, कराची से आया था। ऐसा था कि जब वो स्वाध्याय करती और किसी की बात की भी कभी ऐसी बातों बातों में आ जाए और कहाँ भी लगे कि ये निंदा करने वाली बात है, वो सर नीचा कर देती थी। और अगर आप बात ज्यादा आगे बढ़े तो वह रो पड़ते थे। ऐसी होनी चाहिए कि किसी की निंदा कभी भी करनी नहीं चाहिए, लेकिन सुननी भी नहीं चाहिए। और ऐसे उनकी ये थी। फिर था विरक्ति। विरक्ति ऐसी होनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो हर एक बात से विरक्त होते जाते हो। क्योंकि शंकर जी देवी को कहते हैं, मुझे क्या चाहिए? न मोक्षम, न मोक्षस्य आकांक्षा, न भोग इच्छा, न विद्या न अपेक्षा, शशिमुख स्त्रियम वासनम। मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, मुझे भोग इच्छा की भी आकांक्षा नहीं है, न विद्या की है अपेक्षा है, शशि मुख वाली कोई भी स्त्री हो उसकी वासना के पीछे नहीं। यह शंकर भगवान देवी को कहते हैं। तो क्या किसकी है? सिर्फ प्रेम भाव से भक्ति करनी है, उसी की आकांक्षा है। और उनकी है कि शांति आप में अपने आप, यह सब होते होते प्रगाढ़ शांति का आपको अनुभव एहसास आता ही है। फिर कहते हैं नाम गान में रुचि। नाम गान में रुचि जब आपको आती है तब आपके अंदर रस पैदा होते हैं। और वह रस कौन कौन से है? बहुत अच्छा कहा है। आपके अंदर शांत रस जो अभी कहा वो तो आता ही है, क्योंकि आप वहां से विषय वासना से आपको मुक्ति मिलती है, विरक्ति मिलती है, शांत रस आता है। शांत रस के बाद आप जैसा नाम जप करते हो आपके अंदर दासी भाव आता है, दास्य भाव। आप दासी की तरह रहते हो। मुझे मालूम है मेरे गुरु श्रीमद राजचंद्र जी के शिष्य अम्बालाल भाई और लघुराज स्वामी थे। उनके पत्र जब मैंने पढ़े तब उन्होंने दास भाव से, दासी भाव है, नमस्कार ऐसे कहते हैं, पाय वंदन दासी भाव, दास्य भाव होता है। और जो भी सत्पुरुष जिनके गुरु है उनको पता होता है कि दास्य भाव से भक्ति ही मानी जाती है, बाकी कोई भाव से नहीं। अहंकार तो दूर रह गया, लेकिन दासी भाव में भी विनयशीलता इतना गुण अपने आप में आता है कि वह प्रेम रस के बगैर वह पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद में सख्य रस, सखी का सहचरी का रस पैदा होता है। वह सहचरी का रस कैसा होता है कि आपको भगवान से बातें करने का मन होता है, हर एक बात शेयर करने की मन होती है। भगवान जैसे आपकी सखी है, हर एक बात जैसे वो सुनने के लिए तैयारी है। सखी को हम कभी वक्त नहीं देखते, जो भी बात कहनी है, कल से भी बात है, सखी को कह सकते हैं। वो भगवत को, भगवत स्वरूप को अपनी सखी मानना कितनी बड़ी बात होती है। अभी वह धीरे धीरे वात्सल्य रस, जैसे जसोदा में थी, कौशल्या माता में थी, वात्सल्य रस, प्रेम तो उनको भी था, लेकिन वो रस वात्सल्य रस था उनका। और ऐसा था कि कौशल्या माता जब राम जी आते हैं लंका से युद्ध करके, और जब कौशल्या माता की गोद में सोती हैं, उनके हाथ और पैर देखकर कौशल्या माता कहती है कि मेरी लड़की के हाथ कितने कोमल हैं, वो रावण की बाण कैसे मार सकता है, वो मार ही नहीं सकता। ऐसा वात्सल्य रस की मेरा लड़का ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और फिर मधुर रस, मधुर रस जैसे रुक्मणी जी को था और लक्ष्मण जी, क्योंकि उनमें भी अपने पति के प्रति अतिशय प्रेम है, मधुर रस है। लेकिन यह मधुर रस ऐसा है कि उनको ऐसा होता है कि एक मर्यादा आ जाती है। प्रेम तो है, लेकिन जो गोपियां करती है प्रेम, ऐसे प्रेम ये नहीं कर सकती। गोपी भाव मधुर से भी मधुर रस है। तो वो कहते हैं कि गोपी भाव की ही महत्ता है, उनको भी प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक मर्यादा है।
और ऐसा होता है कि वह काम नहीं करवा सकती कृष्ण से, या लक्ष्मी जी विष्णु से काम नहीं करवा सकती, क्योंकि एक सम्मान की भावना होती है। लेकिन गोपियां का तो क्या है, वो तो सखी, क्या कुछ कहो, सब कुछ करवा सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि वो कृष्ण को एक ऐसे रूप से चाहो, अति प्रेम, ऐसा प्रेम कि हर बार आपको लगे कि मैंने तो कृष्ण को कुछ दिया ही नहीं। राधा को हर टाइम दुख रहता था। राधा को ऐसा लगता था कि मैंने कृष्ण को कुछ दिया ही नहीं। और कृष्ण कहते थे कि अरे मैं राधा तेरा ऋणिया हूं, मैं कभी जिंदगी भर मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा, मैं तो तेरा ऋणिया रे, ऐसे कहते रहते थे। और राधा कहती थी कि मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं। जी राधा जैसा प्रेम, बोलते हैं कि राधा एक समुद्र है और गोपियां सब लहरें हैं। हर एक की अलग 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 रूप से जो भक्ति होती है, वह गोपी भक्ति, वह लास्ट में राधा भक्ति में होती है। और भाई जी राधा भक्ति में खुद को राधा मानकर प्रेम करते थे कृष्ण से। इसीलिए जुगल स्वरूप में कृष्ण उनके अंदर विराजमान होते थे। वह कहती थी मेरा काम कैसे होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं राधा भाव में डूबा रहता हूँ। मैं राधा हूँ, कृष्ण आना है तो आए, लेकिन मैं तो राधा भाव से कृष्ण का भक्ति करता हूँ। और ऐसे होता था कि राधा भाव की भक्ति करना, अगर कृष्ण कहते हैं कि जो राधा की भक्ति करे उसी के पास मैं आता हूँ, और उनमें अतिशय राधा भाव था। इसीलिए वो राधा माधव कहते हैं कि राधा माधव के बहुत पद लिखे हैं। 1500 1565 पद लिखे हैं। पद रत्नाकर करके इनकी बुक है, उसी में लिखे हुए हैं। क्या भक्ति उनकी थी। और बातें तो बहुत है, कितनी करें कितनी ना करें, ऐसा है। और मान शून्यता उसी के बारे में बताऊं, क्योंकि जो 9 नदियां हैं उसमें नामगान में रुचि, मोह आसक्ति का त्याग, आशा बंद। और जब कृष्ण मिल जाए तो फिर और क्या आशा रख सकती हैं। और कृष्ण सबको मालूम है कि जो भी कृष्ण से भक्ति में लीन होते हैं, आत्म अनुभव के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आत्म रस के अंदर लीन होते होते कृष्ण के सहारे अपने आप में लीन हो जाते थे। तो आशा तो और क्या करें। और मान शून्यता, मान शून्यता, भाई जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि भी उसकी त्याग नहीं कर सकते हैं मान शून्यता का। और उन्होंने एक दो उदाहरण ऐसे दिए हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जो कलकत्ता के बहुत बड़े माने जाने व्यक्ति थे। एक बार वो उनके गांव गए थे, और उन्हीं की कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वो भी गांव गए थे, लेकिन वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को नहीं पहचानते थे। वो बक्सा उनका लेकर आए थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं तो शहर से आया हुआ हूँ, गांव में मैंने पैंट शर्ट पहना, मतलब उस टाइम पर ऐसा लिबास पहनना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं बक्सा कैसे उठाऊं, तो वो स्टेशन पर कुली 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 करके वो लगाते हैं। कुली कोई मिलता नहीं है उनको। विद्यासागर जी वहां पर टहल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति को मेरी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि कुली चलो मैं आपका बक्सा उठा लेता हूँ। उसको पता नहीं था। जब वह बक्सा लेकर उनका घर तक चले गए, तब घर वालों ने कहा अरे महाराज ये आपने क्या किया। तो विद्यासागर जी कहते हैं कोई बात नहीं, इनको मेरी जरूरत थी। तो वो उतना उनको बुरा लगता है कि मैंने विद्यासागर जी जैसे आदमी के पास से काम करवाया। तब उन्होंने कहा कि अपने खुद के काम करने में क्यों आपको इतना शर्म आती है, वो तो खुद को करना चाहिए। और एक उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लखनऊ के नवाब। लखनऊ के नवाब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर अटैक किया था, तब सब लोग भाग रहे थे कि अभी ये लोग आए हैं इससे इन्हें तो पकड़ लेंगे। लेकिन नवाब को नौकरों से काम करवाने की इतनी आदत होती है नवाब लोगों को, तो कोई मेरा जूते में पैर में जूता पहना तो कोई मेरा पैर में जूता पहना दो, लेकिन कौन अभी पहना है। अभी वो तो राजा रहे नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अटैक कर दिया था, सब लोग भागने में पड़े थे, किसी ने उनको पहनाया नहीं। 10-15 मिनट इसमें हो गए, पहनाओ पहनाओ करके अंग्रेज लोग आ गए और उनको पकड़ लेकर ले गए। फिर उन्होंने 2 इंसिडेंट्स कृष्ण के कहे हैं। राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया था। कृष्ण कहते हैं कि मुझे आप कोई भी काम दो। अभी कृष्ण को कौन काम देगी, वो तो भगवान स्वरूप थे, नारायण थे, उनको कौन काम दे सकता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो अपने आप, उन्होंने काम ले लिया, जो भी भक्त गण आएंगे उनके मैं पैर दूंगा। राजसूय यज्ञ स्टार्ट हुआ, अर्घ चढ़ता है वहां पे, नारायण के नाम का अग्र पहला अर्घ चढ़ता है, और नारायण क्या करते हैं, सबके पैर धो रहे हैं। मान शून्यता। और फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण एक बार सो रहे थे,
और भृगु महाराज आते हैं, भृगु महाराज कहते कि अरे मेरे देख भी ये सो रहा है, देखूं कि जाग रहा है कि सो रहा है। पैर जमा दी कृष्ण की छाती पर। कृष्ण अचानक से उठ जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं। भृगु महाराज को कहते हैं कि मेरी छाती वज्र जैसी है, इसीलिए आपके पैर मेरी छाती पर आए तो आपको लगा होगा बहुत कुछ, मुझे पता नहीं था, इसीलिए आपके चरणों में बहुत कुछ आपको लग गया होगा, तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मानव शून्यता। और ऐसा उन्होंने, एक मंदिर है बिहार में जहाँ पे कृष्ण को भृगु की लात मारते हुए दिखाया दिया है। ये लात मारने की प्रक्रिया भी श्रृंगार रस में परिवर्तन करने वाले कृष्ण ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की है, और उनका आवाज इतना मीठा था, उनके गान इतने मीठे थे, और भगवत कृपा पर उनका विश्वास इतना था कि दमू मैं और भी बोलूं कि भगवत कृपा के बारे में कि ध्यान करने बैठे हैं। ध्यान करवाना, अभी 9:25 हो गया है। ओ माय, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। बातें इतनी मधुर और बातें रसीली। बहुत इतनी मधुर थी, बहुत ही मधुर है। सॉरी सॉरी। लेकिन फिर कभी यस, दमयंती जी हमें चांस डेफिनेटली, देगी तो हम और भी बातें करेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली विल डू ओके दैट। प्रभु। यस। सो सब लोग पहले पानी पी लीजिए, अगर पानी पीना है तो। हैंड क्रॉस करें। अच्छा, मुझे पहले पूछना है कि मैं जो ध्यान करवाने जा रही हूँ वो मंत्र का ध्यान होगा पहले, इसके बाद में म्यूजिक चलेगा। मंत्र ध्यान में किसी को गायत्री मंत्र का अर्थ आता है तो मुझे पता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। अगर आप किसी को भी आता है, जैमिनी बेन की, किशोर भाई की, किसी को भी, तो आप बताएं। आज तो जेमिनी पेन है नहीं, लेकिन आप किशोर भाई को आपके बताएंगे। आप आपके ही आवाज में करना, इट्स फाइन मैं टोटली। तो करूंगी लेकिन सिर्फ मीनिंग बताना तो ठीक है। अभी किशोर भाई आपको पता है, आप बताएंगे गायत्री मंत्र का अर्थ। मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। अब म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। किशोर भाई ये बोलता है ना। Jai Jinendra, हम्म, I know the earth, but I don't remember exactly at this point. ठीक है, अगर मैं बताती हूँ, अगर मेरा ही में कुछ गलती हो या मुझे मेरी भूल हो जाए तो आप बता Mahamrut, दीजिए। अच्छा, हाँ। yeah, अभी I नौकर know का the मन। I know Mahamrutyunjay mantra's meaning. हाँ, वो तो इजी है मुझे मालूम। अभी जो ये दोनों मंत्र बहुत अनंत समय से चलने वाले मंत्र हैं। हर एक भागवत पुराण, ये सब हमें पता है कि किसी न किसी रुचि ऋषि ने ऋचाओं में लिखे हैं, लेकिन नमोकार मंत्र और गायत्री मंत्र किसी को पता नहीं है। यह परंपरा से अनंत समय से आने वाले मंत्र है। तो और हमारे यहाँ पर यह हर टाइम बोले जाने वाले मंत्र है। तो यह है कि वो ओम। ओम तो सबको पता है, यह हमारा आत्मा का नाद है। ओम। भूर्भुवः। भू मतलब जमीन, भूर्भुवः वह अंतरिक्ष, स्वः स्वर्गलोक, तीनों लोक से यह प्रिय है, मतलब उनमें से। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। एक मिनट। कि हम्म, परमात्मा अथवा ब्रह्म और सवितुर, वैसे स्वर्गलोक में माना गया है। वर्गो देवस्य धीमहि। वर्ग मतलब अज्ञान, देवस्य ज्ञान स्वरूप आत्मा भगवान। धीमहि हम ध्यान करते हैं, हम ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान का नाश हो, और यह शक्ति हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, इसीलिए। और धियो यो नः प्रचोदयात्,
वो हमें सूर्य की तरह हमारे में प्रकाशित हो। ज्ञान, ज्ञान हर एक, उससे कोई धर्म नहीं है। आत्मस्वरूप भगवान आत्मा वो ज्ञान स्वरूप है। जो भी हम प्राप्त करते हैं ज्ञान आत्मा से ही। हमें कोई संत हमें मिलता है लेकिन वो ज्ञान देते हैं, लेकिन आप में जब ज्ञान आप खुद लेना चाहते हो तभी ही ले सकते हो। इसीलिए जब आप में ज्ञान की किरणें अंदर प्रवेश हो पाए, अंदर प्रकाशित हो पाए, तब आप ज्ञान को अपने आप में प्रवेश करके आपके ज्ञान को उजागर करते हो। इसीलिए सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, आपकी तरह हमें भी तीनों लोक में जो ओमकार है, अज्ञान का नाश करने वाला है, वह ज्ञान मुझे प्राप्त हो। तो आज हम उस पर ध्यान करेंगे। और नवकार मंत्र सबको मैंने पंच परमेष्टि पता है। सिमंदर स्वरूप के संवत्सरण में उनकी देशना जहां चलती है, सिद्ध तो सिद्ध है, लेकिन अरिहंत आचार्य उपाध्याय और साधु, वह सब जो साधु के अलग अलग गुण है, उस तरह से उनको आचार्य पद मिलता है, उपाध्याय पद मिलता है, साधु पद मिलता है। और यह मंगल है, पापों का नाश करने वाला है, ऐसा उनका मीनिंग होता है। और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल, मंगलानंच शवेसिन पडमम प्रथम मंगलम, ये है, ऐसे बताया गया है। अब मैं, आप लोग सब ध्यान में बैठेंगे तो मैं चक्र पर ये ध्यान करवाऊंगी। सो मैंने अनुमति ली है दमयंती जी से कि मैं चक्र पर करवाऊं। हर एक चक्र को मैं बताऊंगी आपको वो कहाँ है, सबको पता है। एनएस को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पे मूलाधार है, मूलाधार की 2 उंगली ऊपर स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान से 4 उंगली ऊपर और अपने नाभि कमल के 4 उंगली ऊपर वह है मणिपुर चक्र, नाभि कमल चक्र। और छाती का जो मध्य भाग है वह अनाहत चक्र। आपका ये कंठ है, कंठ के बीच में नीचे विशुद्ध चक्र, दोनों भंवरों के बीच में है आज्ञा चक्र, और यहाँ पे सहस्त्रार चक्र। सो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र का पाठ करती हूँ। अभी गायत्री मंत्र में ओम ऊपर होगा, सहस्त्रार पर होगा, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोग आज्ञा चक्र में आएंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम कंठ में होगा, फिर भर्गो देवस्य धीमहि, जिसका हम ध्यान करते हैं वह अनाहत चक्र में होगा, दियो यह नाभि कमल, यो नः स्वादिष्ठान, प्रचोदयात् मुझे दो, मेरे में प्रकाशित हो, वह होगा मूलाधार चक्र पर। सो फ्रेंड्स, टोटली पवित्र भाव से अपने आप को तैयार करें। सहस्त्रार पर ओ, आज्ञा चक्र भूर्भुवस्वः, कंठ पर आइए, तत्सवितुर्वरेण्यम, अनाहत चक्र छाती का मध्य भाग, भर्गो देवस्य धीमहि, नाभि कमल, धियो स्वादिष्ठान, यो नः मूलाधार प्रचोदयात्। कोई लौकिक ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ महसूस करें। और दोबारा कहूंगी, ओ सहस्रार भूर्भुवस्वः, आज्ञा चक्र तत्सवितुर्वरेण्यम, विशुद्ध कंठ में
भर्गो देवस्य धीमहि। अनाहत चक्र, नाभिकमल, धियो यो नः स्वादिष्ठान प्रचोदया। अगेन ऊपर आए। अभी मैं कोई चक्र का नाम नहीं लूंगी। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी देर अपने अंदर होते हुए अपने में रहें, मंत्र को फील करें। आंखें बंद ही रखें। नमोकार मंत्र सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब नमो अरिहंताणम बोलूं, आज्ञा चक्र होगा। नमो सिद्धाणम शस्त्रार चक्र होगा। फिर जैसे आप शस्त्रार से एक दूरी को पसार करते हैं, पास करते हैं, तो कंठ पर आती है नमो आयर्याणम अनाहत चक्र, नमो वज्जायाणम नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, नमो लोए सव्व साहुणम। फिर स्वादिष्ठान चक्र, दो एसो पंचनमुकारो सव्व पावपणाशम मूलाधार मंगलाणंच सव्यसिम पडवम हवै मंगलम। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। ओम नमो अरिहंताण शस्त्रार। ओम नमो सिद्धाण विशुद्ध चक्र कंठ में। ओम नमो आयर्याण अनाहत। ओम नमो उच्चायाणम नाभि चक्र। नमो लोए सव साहुणम स्वादिष्ठान ईसो पंच नमोकार सव पाव पणाशणो मूलाधार मंगलाणंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगल।
फिर से एक बार आज्ञा चक्र पर स्थिर करें अपने आप को, आपकी दृष्टि को, आपकी पवित्र भगवत चेतना को। ओम नमो अरिहंता। जब आप अरिहंत को याद करते हो आज्ञा चक्र पर, एक सीधी लाइन होके सहस्त्रार को मिलती है, दोनों तरफ से, दोनों कानों से, और त्रिकुटी होती है, ट्रायंगल होता है, और सिद्धांत के लिए जगह बनती है। सहस्त्रार पर ओम नमो सिद्धांत। विशुद्ध चक्र। ओम नमो आयरिया। अनाहत चक्र। ओम नमो वज्रायाणम्। नमो लोए सव्व साहुणम्। मणिपुर चक्र का स्वादिष्टान। एषो पंच नमोकार सव पावपणासनं। मंगलाणं च मूलाधार, मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। अब मैं उल्टा बोलूंगी। मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र पर अपनी दृष्टि को स्थिर करें। परमं हवै मंगलम्। मंगलाणं च सव्वेसिं। स्वादिष्ठान पर सव्व पावपणाशनम्। ईसो पंच नमोकार। नाभिकमल। नमो लोए सव्व साहुणम्। अनाहत चक्र। नमो वज्रायाणम्। कंठ में विशुद्ध चक्र। नमो आयर्याणम्। आज्ञा चक्र। अब मैं अरिहंत को सिद्ध, मतलब शस्त्रार पर ले जाऊंगी, इसीलिए आज्ञा चक्र में सिद्ध को स्थापित करती हूँ। नमो सिद्धाय। ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो सिद्धाय।
सहस्त्रार। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। Totally be with yourself. मंत्र की उपासना आपके भीतर आपके स्वरूप को और भी प्रकाशित करेगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा आपने सरेंडर किया है अपने आप को अपने आत्म स्वरूप में। बी विथ योर सेल्फ। कंप्लीट मौन, भीतर का पवित्र मौन। ऐसी भीतर की दुनिया में उतर जाओ कि मेरी आवाज भी आपको सुनाई ना दे। अपनी भगवत चेतना दिव्य ध्वनि को एक्सपीरियंस करें माय डियर फ्रेंड्स। यह आपकी आत्मिक शक्ति है। गो डीपर एंड डीपर। आपको अपनी सांसें डीप तक एक्सपीरियंस होती होगी और सांसों के साथ वाइब्रेशंस आपके हर एक आत्म प्रदेश से बहती हुई धारा भीतर की शांति को महसूस करें। आप शांति के निदान हो। मेरी भगवत चेतना जागृत है। जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में उतरते जाओगे वैसे वैसे उसकी बंसी आपको सुनाई देगी। भीतर का प्रकाश आप ही का इंतजार कर रहा है।
मेरे प्रभु कहते हैं, जब आप चल पड़े हो तो मंजिल, लक्ष्य कितना भी दूर हो, लेकिन आपकी श्रद्धा और दृढ़ता उसे और नजदीक नजदीक लाती रहेगी। फील, एक्सपीरियंस योर वाइब्रेशंस, स्पंदन, संवेदना भीतर से आती हुई सिर्फ आपके लिए। गो डीपर एंड डीपर। अब सहज धारा में आप सूक्ष्म जगत में एंटर हो गए हो। सूक्ष्म भाव धारा स्पर्श करने जा रहे हो। मेरा भगवान, मेरा ठाकुर मुझ में है, मेरा कृष्ण मुझ में है। ऐ मेरे कृष्ण, मेरी भक्ति का स्वीकार कर। प्रभु कहते हैं, जैसे मेरा बाहर अरिहंत स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, ऐसा तुझ में भी है। तेरी खुद की भगवत कृपा पर विश्वास कर। बी विथ योर सेल्फ। अपने आप यूनिवर्सल एनर्जी सहस्त्रार से आपके भीतर प्रकाश के रूप में प्रवेश करती है। स्पिरिचुअली आपके भीतर बहुत सी घटनाएं घट सकती है, लेकिन आपका लक्ष्य है आपके भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप, उसी की स्पर्शना। पवित्र सुंदर स्वरूप में आप डूब रहे हैं, डूबे रहे।
पीतर का मौन बहुत पवित्र और सुंदर और दिव्य होता है। आपके हार्ट के आसपास आप कुछ महसूस कर रहे होंगे। वह आपके आत्मा का, सोल का सोर्स है, जहां से स्पंदनें एक्सपीरियंस होती हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम तत्व हूँ। ओ आनंद घन स्वरूपो ओ आनंद घन स्वरूपो ओ आनंद घन स्वरूपो ओ चिदानंद स्वरूपो ओ चिदानंद स्वरूपो ओ चिदानंद स्वरूपो ओ सच्चित आनंद स्वरूपो ओ
सच्चित आनंद स्वरूपो हम। ओ सच्चित आनंद स्वरूपो हम। ओ अनंत गुण निधान स्वरूपो ओ अनंत गुण निधान स्वरूपो हम। ओ अनंत गुण निधान स्वरूपो हम। ओ सर्वज्ञ स्वरूपो हम। ओ सर्वज्ञ स्वरूपो हम। ओ सर्वज्ञ स्वरूपो हम। ओ सिद्धो हम। ओ सिद्धो हम। ओ सिद्धो हम। सो 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 हम।
सो totally be with herself. Complete silence within. Two minutes more, my dear friends. अपने परमात्मा स्वरूप के साथ आपकी जो दिव्य पले हैं, मोमेंट्स है, डिवाइन मोमेंट्स, उनको गैदर करके रखें। अति मूल्यवान मोमेंट्स। जब भी आप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करें, यह दिव्य पले आपके पास अपने आप चली आएंगी। आपने अपने स्वरूप को प्यार किया, प्रेम किया, चितविलास, चिदानंद स्वरूप, चैतन्य ज्योति आपके भीतर रोम रोम में उज्जवल उज्जवल प्रकाशमान है। महसूस करें। One minute more, my dear friends. आप सब लोग बहुत डीप डीप में जा चुके हो। धीरे धीरे अपने हाथों में, अपने पैरों में आपकी चेतना को प्रवेश करने दें। धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश हो।
40 seconds. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. जो लोग भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने आप को अपनी उंगलियों में महसूस करें. हथेली को कोमलता से खोलें, आंखों पर रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All gratitude to our parents जिन्होंने हमें जन्म दिया और ऐसी परवरिश की कि हमने साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं. All gratitude to our gurus, सदगुरुज जिन्होंने मार्गदर्शक बनके हमें मार्ग में खड़ा रखा है. All gratitude to our family and friends जो हमें अनुकूल बनकर रहे और बहुत हेल्पफुल बने हैं. All gratitude to nature, universe. All gratitude to all ध्यानीस ज्ञानीस जिनकी कलेक्टिव ऊर्जा ने यह ध्यान को संपन्न किया. All gratitude to ध्यान ग्रुप. Thank you, thank you, thank you. Thank you all. थैंक यू माधुरी जी, बहुत ही सुंदर. पहचान दिलाया भावजी का, हनुमान मैं जरा प्रसाद जी का. एक एक मिनट मैं जरा शेयर करूं जो हनुमान श्योर प्रसाद जी है उनके फोटोज है. श्योर. लाइट कर दें. ये है, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया. नहीं. नाउ नो. नो. ओके, मैंने कहा शेयर करने को फिर भी नहीं हुआ. पता नहीं अभी कैसे हो नहीं रहा है. सॉरी. ऐसा करना, मुझे भेज देना, मैं ध्यान ग्रुप में भेज देती. ओके. बट थैंक यू फॉर. मुझे उनको उनका फोटो तो दिखाना था, बहुत ही इच्छा थी कि आप सब लोग उनका स्पर्शन करें, लेकिन कैसे करो. और एक बार ट्राई करती हूँ. दिखा भी. अभी दिखा. यस. हम्म. और कल्याण मैगजीन के साथ में ये है. हाँ, कल्याण मैगजीन के साथ में है ना. ये साथ है में. हनुमान प्रसाद जी, भाई जी. यस यस यस. ओके. और
ये दिखा नहीं, राधा बाबा जी? नहीं। नहीं दिखा, पता नहीं, अभी मैं आपको भेज देती हूँ अभी। यस। उनकी समाधि है, समाधि गीता वाटिका में है, और गीता वाटिका में अभी भी उनकी एशीष रखी गई है। अच्छा। अभी भी सब लोग आके उनको परिक्रमा करते हैं, हम्म। और बहुत से लोगों की, क्योंकि वो अंतर की बातें सब जानते थे, इसीलिए। राइट। शायद कैसे है, एक शेयर हुआ तो दूसरा क्यों नहीं पता। शायद उनकी इच्छा नहीं होगी। थैंक यू। थैंक यू माधुरी जी। टेक्निकली थोड़ी थैंक यू। वीक है इसलिए। Thank you for coming. Thank you for sharing your wisdom for बाबूजी हनुमान बाय प्रसाद जी। जी का, भाई जी का। और भक्ति का क्या महत्व है, और भक्ति की पराकाष्ठा किस किस दर्जे पर पहुंचती है। जो सखी का प्रेम, दासी का प्रेम और राधा का प्रेम, उसका भी आपने जो विवेचन किया, उसके बहुत ही सुंदर था। बहुत ही was very definition of the level of the spirituality and समर्पण भाव। और कितना समर्पण भाव हो कि जब भगवान को भी आना पड़े आपके सामने और हाँ, उनको भी दर्शन देना पड़े आपको, वही पराकाष्ठा है। क्योंकि वो रेडी है, वो वो रेडी है। भी चाहते हैं कि मैं ऐसे भक्त प्रेमियों के पास आऊं, राइट। मुमुक्षुओं के पास आऊं, उनके पास बैठूं, क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए जन्म लेते हैं यस। क्योंकि उनके साथ स्वाध्याय करने को मिले, उनके साथ चले। ऐसे ही उनका स्लो प्लानिंग होता है। हम्म। और हर एक के साथ 10-15 लोग ऐसे होते हैं, जैसे कृपालु देव के साथ थे, यस। बाबरी स्वामी के साथ 11 गंधर ऐसे। वो तो तीर्थंकर है इसलिए उनके पास ज्यादा, लेकिन और भी जो ज्ञानी है सबके उनके पास। साथ 8-10 लोग ऐसे उनके साथ आने वाले होते ही हैं, कहाँ कहाँ से भी मिल जाते हैं सब साथ में, यस। और उनके यस। साथ रहना चाहते। I guess थैंक this is the यू। spirituality path. That's why we are all together here. या Also, so this is the way of the पराकाष्ठा। और कितनी अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए, वो आपने आज उसकी विजडम दी। और उसका मालूम तो था सबको, लेकिन फिर भी इट टचेस एवरीबॉडीज हार्ट दैट हाउ फार वी कैन गो विद इट, एंड उसके लेवल कितनी हाई होनी चाहिए, समर्पण भाव कितना होना चाहिए। दिस इज यू नो यस। सो थैंक यू। और थैंक यू। किसी को कुछ एक्सपीरियंस कोई हुआ हो तो Anybody want बताएं। to share anything, please feel free, Uh, unmute yourself. yes, I would like to mention something. Sure, go ahead, Kishore bhai. Madhuri ji connected the Naukar mantra with Across. Gayatri mantra and Yes. then created a bridge. Yes. Is excellent observation and was very touchy. Yes. Now, I have found something similar. I would like to share it with you. I have not even mentioned to Ranjan, but this is what I found, that there is a stuti in Bhagavad, the Govinda Madhav stuti, Karar Vande. That Bhagavad Katha starts with Karar Vande. And actually they recite 8 sloks, not more. But in reality, there are about 60 sloks of Karar Vinde. Now, I was thinking one time, what is Karar Vinde? And I tried to, find the meaning and all that and did a little research. And I found that there was a similarity between Karar Vande, Hanuman Chalisa, and our Jain Bhaktamar. Yes. Our Jain Bhaktamar is આપણે આદિનાથ ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ છીએ, અને એ ગુણગાન ગાવાથી શું ફાયદો છે એ છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે. Yes. એવી જ રીતે હનુમાન ચાલીસામાં પણ 40 શ્લોક ને છેલ્લે એનો
હનુમાન ચાલીસાથી શું ફાયદો થાય એ કહે છે. અને એવી જ રીતે કરાર વિંદે જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના ગુણગાન ગાવાના છે. અને એ છેલ્લે એમ કે છે કે આ ગાવાથી શું ફાયદો છે. So there is a bridge between Definitely, there is a bridge. It's after all the certain path when you are going to spirituality. At certain extent, when you are going in there, it's same. the same. It is the same. You know, after all, we are all heart. We are all ખરેખર તો mass. છે ને કે એવું છે આત્મા કે છીએ આપણે Go ahead. બધા હા ગુણગાન ગાઈએ છીએ ને દરેક વસ્તુના. આ જે મંત્રો લખેલા છે ને એ જે લોકોએ સાધના કરી છે ને, ક્યારેક આપણને ચાન્સ મળશે તો આપણે વાણી વિશે વાત કરીશું. પશ્યંતી વાણી એટલે વાણી જે 4 પ્રકારની છે, પરાવાણી, પશ્યંતી, પછી આપણે જે બોલીએ છીએ એ what is that? મોઢામાં આવે છે ને નથી આવતું. વૈખરી આપણે બોલીએ છીએ. મધ્યમાં જે આપણે મનથી વાત કરીએ છીએ. પરા એટલે આપણે જે નો વર્ડ્સ ના, પછી વૈખરી, પછી પરા મધ્યમાં બી નથી, પણ છતાં બી મધ્યમાં તમે ફેસથી એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. પરાવાણીમાં તમે તમારા આખા શરીરમાંથી એવા વાઇબ્રેશન્સ આવે છે, પણ એમાં બાઉન્ડ્રીઝ છે. જે તમારા અર્યંત ભગવાનની દેશના જ્યારે થાય છે તો 1 યોજન સુધી એ વાણી સંભળાય છે બધાને. એક ખાલી ઓમ બોલે છે, બધાને એમાં એના મિનિંગ મળી જાય છે, બધાને ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ મળી જાય છે, પણ એ 1 યોજન છે. પશ્યંતીમાં કોઈ બાઉન્ડ્રી નહીં, કંઈ જ નહીં. તમે તમારા ભાવથી તમે ગમે ત્યાં જઈ શકો છો. હવે આ બધા જે મંત્રો રચાયા છે એ બધા ઋષિ મુનિઓએ પોતાના સાધનામાં પશ્યંતી વાણી સુધી પહોંચ્યા. પશ્યંતીમાં એ લોકોએ આ મંત્રને ચિત્રિત પોતાનામાં જોયા અને અક્ષરથી પછી આવે. આટલી લેવલ સુધી જઈ અને પછી આ લખાયા છે. એટલે જ્યારે તમે એનું રેસિટેશન કરો ત્યારે લિટરલી તમને અસર થયા વગર રહી જ નહીં. છેલ્લે એ લોકો કહે છે કે તમને આનાથી આ લાભ થાય છે, પણ લાભ મેળવવાનો ફર્સ્ટ શ્લોકથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. કારણ કે એમાં એટલા બધા એ લોકોની સાધનાની ઉર્જા ભરેલી છે, અને એ ઉર્જા તમારી ઉર્જા પર કામ કરે છે અને તમારી ઉર્જાને એ કાર્યાન્વિત કરે છે. એવી રીતે કાર્ય કરે છે કે ઓટોમેટિકલી બધું મળી શકે છે. એટલે એ લોકો કહે છે કે તમે આ બોલશો તો આ થશે, પણ ખરેખર એ બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરો એટલે ભક્તિ આવી, શ્રદ્ધા આવી, એના પછી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ભક્તિ શ્રદ્ધા પછી જે સ્ટાર્ટ થયેલું જે પણ કાર્ય હોય ફળ સ્વરૂપ તો મળે જ ને મળે જ. એટલે જ કહું છું કે પશ્યંતીથી ઉત્પન્ન થયેલા આ બધા મંત્રો છે, એ લોકો એ સાધનાના લેવલ પર ગયા અને એના પછી એ શાસ્ત્ર રૂપે આપણને આપણા નસીબે મળ્યા છે. કારણ કે એ ઋષિમુનિઓ બધા વૈજ્ઞાનિક હતા. એ લોકોની મંત્રની ઉર્જા, આ હનુમાન પ્રસાદજી એવી એક વાત કરી હતી કે દિલ્હીમાં એક હતા, સાધુ હતા, એમની પાસે ગયા. એમને તો ખબર હતી કે મંત્રની અગાધ શક્તિ છે, એવી શક્તિ કે એ ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનની ચિત્રપટ આગળ કાંઈ પણ મૂકે અને જે પણ આવે એમને જે જોઈતું હોય એ બધું મળી શકે. જેવી રીતે એક કાઠી રાખે અથવા એ પાણી રાખે, પાણીની ખીર પણ થઈ જાય અને બધાને ખવડાવે, પીવડાવે, બધું કરે. મંત્ર શક્તિ, તો મંત્રનો પાવર એટલો બધો. તો એ બધાએ જે ઉર્જાથી ભેગું કરેલું હોય તમને આપે છે. એટલે મંત્રથી તમારી અંદર, તમારા આત્માના પ્રદેશોમાં એક પ્રકારની રચના થાય છે તમારી આજુબાજુ, અને એ રચના તમારા આત્મા પ્રદેશો કરે છે. જ્યારે તમે રિસાઇટ જે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી કરો, એ ભક્તિથી તમારી આજુબાજુ એ બને છે. તમારી અંદર એટલી પોઝિટિવિટી આવે છે અને ઓટોમેટિકલી કામ તમારા આત્મા જ તમારા પર કરે છે. આની સહાયથી ખાલી. નિસર્ગદત્ત મહારાજ અહીંયા મુંબઈમાં હતા, ગિરગામમાં એમનું હતું, આત્મજ્ઞાની હતા. એમના ગુરુએ ખાલી એમને કીધું કે તું ફક્ત તને જો, બીજું કાંઈ નહીં કર, અડધો કલાકથી ઉપર નહીં, અડધો કલાકની અંદર આજ કર. 3 મહિનામાં એમને આત્મજ્ઞાન થયું. પછી જે આ બધું બોલ્યા એમાં મંત્ર શક્તિથી જે આત્માની જે અંદર બહાર પોતાની જે રચના કરે છે પ્રદેશોની, કારણ કે આત્મા આખું અનંત પ્રદેશોથી ભરેલો છે, એની રચના આમ થાય છે, એની તમારું કવચ ઉભું થાય છે અને એ તમારું કામ કરે. એમણે લખ્યું છે
અહમ બ્રહ્માસ્મી બુકમાં. સુપર બુક છે. એટલે ફ્રેન્ડ્સ બહુ મજા આવે તમારા બધા સાથે વાતો કરવા. આજે એક નવી ઉર્જા હું પણ મારામાં અનુભવું છું. Definitely. યા મંત્ર તમારા બધાની બધા લોકો જેમ આવીને કહે છે તેમ પ્લેટફોર્મ પર જે ઉર્જા છે એ ઉર્જાની અસર મને પણ થઈ છે ખૂબ બધી, કે હું બહાર નહોતી નીકળી શકતી. આ કેમ બંધ કરું, કેમ પૂરું કરું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Thank you for coming. જય જિનેન્દ્ર બધાને. We'll meet again next week. Next week આપણું એક દિવસ આગળ છે. Keep it in mind. It's on Monday night. શંપા મુખર્જી જે મહાન ડિવાઇન સોલ છે, આપણા હું બધાને ઓળખું છું, ઘણા માસ્ટર્સને ઓળખું છું, પણ I haven't came up on the level of શંપા મુખર્જી. એટલા લેવલ આગળ વધેલા છે શંપા મુખર્જી. She doesn't act like that. She acts very humble, very simple. She doesn't have much time. Sometimes she does 4-5 workshops at a time. એમના ચાલતા જ હોય છે. એની વચ્ચે આપણને ટાઈમ આપ્યો છે. She can come only Monday. So that's what I book her for Monday. So Monday night we'll meet again 8:30 with Shambha Mukherjee. We're looking forward to it. Each and everyone should join it and do not miss it. Okay. Have a divine night. Stay તમારા પ્રફુલ્લિત આત્મા સાથે એની રમણતામાં રમતા રહેજો આખી રાત. And we'll see you soon. Thank you. Thank you, Madhuriji. Thank you. Thank you all. Thank you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye.